بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن اور ادھر مر گئے, یا شیر کے شیر سے تعلقات ہو جائیں گے, اللہ معاف کرو. یعنی جب شیر بھی ملے گی نا تو وہ بھی کہے گا یار یہ کوئی لا پاس ہونا چاہیے اس لائف. دیسی اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھ سے پوچھتے ہیں نا, اے مسلم اسٹیٹ میں, یہاں امریکہ ہے, ہم لندن میں رہتے ہیں, ہم جاپان میں رہتے ہیں, بھائی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, یہاں گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. دو تین چیزوں کا بہت میرے ساتھ خیال کریں, میرا میٹر بہت گھومتا ہے اس پہ. یا تو مجھے ٹائم بتایا کریں بھائی 10 بج کے اتنے منٹ پہ آپ لگ رہی ہے, کولڈ ڈرنک پینی ہے, کولڈ ڈرنک پینی نہیں بھائی آپ سب یہ. Hey, what's up guys? This is your boy HMK اور آج میں یہاں پہ آیا ہوں. یہاں پہ آئے طارق مفتی, طارق مسعود کا یہاں پہ آئے, ان کا ایونٹ ہے. تو ابھی یہاں پارکنگ بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے. جیسے آپ کو میں دکھا دوں بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ. باہر میں نے بس کھڑی کر دی ہے گاڑی, تو اندر جا کے دیکھتے ہیں. 7:30 پہ آنا تھا اور ابھی تقریباً 7:45 ہو چکے. تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے, کون یہاں پہ شاید کوئی اسٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں, میں نے بیچ اسٹینڈ پہ جو یہاں پہ لگا دی ہے. یہاں پہ یہ ساری پارکنگ فل ہو چکی ہے, باہر روڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں. اچھا یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ ہم رمضان میں آئے تھے افطاری کرنے اور چاند رات والے دن. تو اورنج کاؤنٹی کی وہی مسجد ہے, اسی طرح سے پھیلے لگے ہوئے. اور یہ پارکنگ کی طرف پیچھے آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ ابھی رش ہے, میرے خیال میں کوئی اتنا کچھ آیا نہیں ہے, کوئی اندر رک جا رہے ہیں. یہ وہ پارکنگ ہے پوری کہ جہاں پہ چاند رات کے جیسے ہم جب آتے ہیں تو لگاتے ہیں. تو یہ فل ہوئی تھی, میں نے تو باہر لگائی ہے, روڈ پہ ہی لگا دی. اور یہاں سے صحیح انٹری یہاں سے. یہی سامنے انہوں نے وہ اسٹال لگائے ہوئے تھوڑے بڑے, یہ اسٹالز لگے ہوئے. لاس اینجلس کی یہ سنا ہے کہ سب سے بڑی مسجد ہے. دانوں میں یعنی لوگوں میں یہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ بچہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس کے بارے میں بچے کو خیال ہو کہ تربیت نہیں, جہاں مجھے مزے سے. نانی کے گھر بچے اکثر شوق سے جاتے ہیں, دادی دادا کے ہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وجہ کیا ہے, بچے ننیال میں لاڈ پیار زیادہ ملتا ہے, ددیال میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ددیال ہے نا اس میں تربیت کا عنصر رکھا ہے. یہاں تو ددیال ننیال سمجھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے, دیسی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو جب انسان کے پاس دو چیزوں کا آپشن ہوتا ہے, ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو, تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ مزے کی چیز کو. تو آپ کو یہاں پر مذہب بھی ہے آپ کے سامنے, یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے بھائی, جس نے مسجد میں جانا ہے جائے, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ لوگ رکھے, جس خاتون نے پردہ کرنا ہے کرے, جس نے نہیں کرنا ہے نہیں کرے, جس نے شراب پینی ہے پی لے, جس نے نہیں پینی ہے. منہ سے بولنے پر بھی کوئی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے, یہ بھی پیاس آتی ہے. جس نے نہیں پینی ہے نہ پیے, سمجھ رہے ہو. جس نے نکاح کرنا ہے کر لے, جس نے زنا کرنا ہے کر لے, بیوی بنا کے رکھنا ہے بنا لے, گرل فرینڈ بنا کے رکھنا ہے بنا لے, وسیم بھائی سے دوستی لگا لے. کیا خیال ہے بھائی, گرل فرینڈ کی بھی تکلف کی اب ضرورت نہیں. آپ کو غفار پسند آ رہا ہے, چلو غفار کے ساتھ ہو. جمشید اچھا لگ رہا ہے, آئی لو یو جمشید کو بول دو. یہاں اس طرح کی کوئی پابندی. پاکستان میں تو ابا سے بولو ابو میں آپ کی بہو جمشید کو بنا کے لاؤں گا, ابا بولے گا بیٹا تو کیا دماغ سیٹ ہے. یہاں ابا کو بولنے کی اجازت نہیں, آپ کیس کر دو, میرا ابا مجھے منع کر رہے ہیں, میرے بیسک رائٹ نہیں دے رہا, مجھے جمشید پسند ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں محمودہ سے شادی کرو. تو یہاں پر کیا ہے, آزادی ہے بھائی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بالکل انہوں نے کہا لائف کو انجوائے کرو, مستیاں ہیں لائف, مزے اڑاؤ. ہاں کچھ پابندیاں انہوں نے بھی لگائی ہیں کہ اتنے مزے نہ اڑاؤ کہ دوسروں کے مزوں میں رکاوٹ بننا شروع کر دو. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو, اتنی نہ پیو کہ دوسروں کو توڑتے پھوڑتے چلے جاؤ. تو لمٹ تھوڑا سا ٹیسٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے سب لوگ ان لوگوں نے. تو یہاں آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے, سمجھ رہے ہیں, بہت زیادہ آپشن ہے.
इंसान की नेचर क्या है, तबीयत क्या है। कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान को हमने जल्दबाज पैदा किया है। वो कहता है जल्दी का जो मजा है वो ले लो, फ्यूचर को मत देखो, मुस्तकबिल में क्या होगा मत देखो। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, हर डब्बे में लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, कैंसर का सबब है, फिर भी पूरी पूरी डिबियां पी जाते हैं। फेफड़े जवाब दे जाते हैं, लंग्स की ऐसी की तैसी हो जाती है, देख रहे हैं सुबह शाम। बल्कि कराची में खंभों पर ढांचों की तस्वीरें बनाई गई होती हैं, देखा होगा ना आपने, कराची में खंभों पर ढांचों की तस्वीरें कि इसके करीब आए तो हो सकता है ऐसे हो जाओ, यानी करंट लगेगा और ऐसे ना हो जाओ, फिर भी लोग करीब आ रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं। तो इंसान की तबीयत क्या है, आदत क्या है, वो कहते हैं फौरी मजा जिस चीज में आ रहा है बस उसको हासिल कर लो, ब्रेक ना लगाओ। पैगंबरों ने हमें ये सिखाया है कि देखो हर लज्जत, हर मजे की चीज ऐसी नहीं है जिसे हासिल कर लिया जाए। कुछ मजे ऐसे हैं जिससे बड़े मजे किरकिरे हो जाएंगे तुम्हारे। अब देखो जो लोग ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, वक्ती तौर पर तो उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। इधर तवज्जो मेरी तरफ, आता है कि नहीं आता? उसके बाद उनके मजे खराब हो जाते, उनको हर थोड़ी देर में चरस चाहिए, हेरोइन चाहिए, नशे की चीज चाहिए, नहीं पिएंगे खोपड़ी क्या होगी, आउट होगी। जितना तगड़ा मजा होगा ना उतनी ही खोपड़ी को ज्यादा खराब करेगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी चरस पी नहीं है, लेकिन आप कहीं तो बोले मुझसे बड़ा तजर्बा है, लेकिन चरसियों से पूछो और हीरोइनसियों से पूछो, हीरोइन ही कहेगा कि जो मजा हीरोइन में है ना, चरसी ने कभी वो मजा ख्वाब में भी बोलो नहीं देखा होगा। क्या ख्याल है, यही कहेगा ना। लेकिन हीरोइन जी की हालत चरसी से 10 गुना ज्यादा खराब। मैंने मरते हुए देखे हीरोइन जी, बहुत मर्द कराची में बहुत हुआ करते थे हीरोइन जी, पता नहीं गए कहाँ हो, अल्लाह खैर करे, कहाँ चले गए अल्लाह। तो इतने मरे, इतनी सिसक के उनकी मौत वाक़ई होती है। तो इंसान की आदत क्या है, जहां मजा नजर आएगा ना उस तरफ भागता है। पैगंबरों को अल्लाह ने मेरे भाई भेजा ही इसलिए है दुनिया में कि हर मजा इस काबिल नहीं है कि उसे हासिल किया जाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। देखो ये चीजें तुम्हें सेकुलर लोग नहीं बताएंगे, ये चीजें तुम्हें साइंसदान बोलो नहीं बताएंगे, ये तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगी। सवाल पैदा होता है ना, मेरे बयान पे लोगों ने कमेंट्स किए हुए होते हैं, अमेरिका में, जापान में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट वो खलाई सैयारे आसमानों में भेज रहे हैं, एक मदरसों का पड़ा हुआ मौलवी वहां क्या करने गए भाई? उन लेक्चरर इतने बड़े बड़े लोगों के मुकाबले में ये मौलाना क्या जापानियों को जाके समझाएगा, ये मौलाना अमेरिका में जाके समझाएगा? भाई साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मौलाना के अलावा आपको कोई भी बोलो नहीं समझाएगा, वो मौलाना ही को समझाएगा आपको। और ये मौलाना यहूदियों में भी होते थे, ईसाइयों में भी होते थे। जब तक यहूद और नसारा अपने दीन और मजहब पे मजबूत थे, जब तक ओरिजिनल दीन पे, तहरीफ शुदा दीन पे नहीं, ओरिजिनल दीन पे मजबूत थे, उस वक्त ज्यादा अच्छी हालत में थे। जब अपने ओरिजिनल दीन से हटे हैं तो तरक्की और मादी असबाब के बावजूद नाकाम हुए हैं। अल्लाह अगर गरीब को खुदकुशी कराए ना तो समझ में आता है, मालदार को खुदकुशी कराए तो ये इबरत है। भाई गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो टेंशन और डिप्रेशन में जा रहा हो, इसका मतलब भाई कुछ भी नहीं है। आपके पास नहीं है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ कुछ रह गया आपसे। अब मैं इसको मिसाल से समझाता हूं। देखो शेर को जंगल में कभी खाने को मिलता है, कभी खाने को नहीं मिलता, भूखा बैठा रहता है, कई कई हफ्तों बेचारा पड़ा रहता है, देखता रहता है हिरन मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है भाई हिरन लिफ्ट ही नहीं करा रहे। कभी क्या करता है शिकार, शेर करता है, कोई और खा जाता है उसको। जंगल में उसके लिए टेंशन है ज्यादा है, लेकिन फिर भी
وہ ایک لائف گزار کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے شیر کو اٹھا کے زو میں چڑیا گھر میں بند کر دیا. آپ نے کہا شیر کے پاس تمام تر سہولتیں جنگل میں میسر ہیں لیکن لگژری لائف نہیں ہے اس کی لائف لگژری نہیں ہے. یہ وہی 1000 سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے اسی طرح بیچارہ چیر پھاڑ کرتا ہے, چیچڑے کھا رہا ہے, کبھی کچھ کھاتا ہے, کچھ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ایک خوبصورت لائف دیتے ہیں. جیسے آپ کو امریکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملی ہوئی ہے, صحیح ہے نا, اتنی خوبصورت لائف آپ کو یہاں ملی ہوئی ہے. اب میں کیا تعریفیں کروں, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, شیر کو اٹھا کے ہم نے زو میں چڑیا گھر میں بند کر دیا. ہم نے کہا یار ہمیں اس پہ بڑا ترس آیا. ہم نے کہا تو مٹی میں سوتا تھا, آج کے بعد تیرے لیے ڈبل بیڈ کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیا انتظام ہوگا, ڈبل بیڈ کا. میں ڈبل بیڈ کا انتظام, اے سی. یہاں تو فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے, ایک صاحب نے اپنے گھر میں 75 کیا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی اگلنا شروع ہو جائیں گے, اس کو کچھ کم کرو یار. کہہ رہے میں 78 کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, تو پگھلنا جائے نہیں. بعض لوگوں کی ہڈی میں روڈ بڑی ہوتی ہے, پگھل جائے گی, فام کم ہے. تو کرو بھیا فارن ہائٹ چل رہا ہے, مائل گاڑی چلا رہے ہیں وہ تو مائلز میں چلا رہے ہیں. ہم تو بہت کنفیوز ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا بھائی, اس کو 75 پہ فارن ہائٹ پہ ٹیمپریچر کر دیا شیر کے لیے. پھر آپ نے شیر سے بولا کہ یار تم ہر وقت شکار کرتے ہو اور گوشت موشت اور یہ کچے چیچڑے بیچڑے بھی, تھوڑا سا لائف میں ڈفرینٹ, کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے. کچھ تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا چینجنگ آنی چاہیے. ایک ہی طرح کا ہرن کھا کھا کے کبھی گدھے کھا رہے ہو, کبھی زیبرا کھا رہے ہو, کیا ہے. آج ہم تمہیں بہاری کباب بنا کے کھلاتے ہیں, کیا خیال ہے. آج ہم تمہیں کیا کرتے ہیں, بہاری کباب. اب تکے بنا رہے ہیں آپ شیر کے لیے, کیا بنا رہے ہیں, بہاری کباب. اچھا شیر کچھار میں رہتا ہے. اب میں زیادہ نہیں اس موضوع پر بولوں گا, خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی دائیں بائیں, اکیلا شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو شیر ہے نا, اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے اتنی شیرنیاں رکھنے سے, کیا خیال ہے. وہ تو جو کر رہا ہے وہی میں بتاؤں گا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے اس سے بھی سیٹنگ چل رہی ہے, فون پہ باتیں چل رہی ہیں تیسرے شیر سے. ایسا نہیں ہوتا. شیر باقاعدہ شادی کر کے رہتا ہے, ایک شیر ہوگا اور دائیں بائیں شیرنیوں کا حساب. اور اس جنگل میں دوسرے شیر کی انٹری, جو خاندانی شیر ہوتے ہیں ان کی بات تو پتہ نہیں, شیروں کا سیٹ اپ بھی خراب ہو گیا ہے. تو باقاعدہ ایسے جنگل میں اس طرح رہے گا. اچھا شیر کیا کرتا ہے, شیر میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. شیر کیا کرتا ہے, شکار شیر نہیں کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں, شیر جو ہے نا, شیر وہ جب شیرنی کسی مشکل میں پھنس جائے گی تو آئے گا. ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لگڑ بگڑ, ہائی نا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہائی, وہ غریب آ رہے ہیں اس کو پہ حملہ کرنے کے لیے. اچھا شیر مستنڈا پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے شیر کی. شیر جو ہے نا وہ مستنڈا بن کے پڑا ہوا ہے, ایسے آرام سے سو رہا ہے. شیر نہیں دیکھ رہی کہ بہت اٹھ, دشمن آ رہے ہیں, تیری بیوی کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے بھائی, اور تو مستنڈا بن کے پڑا ہوا. وہ دہاڑ رہی ہے, چیخ رہی ہے, اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب زیادہ چیخ و پکار ہوئی نا تو شیر بالکل ٹینشن نہیں لے رہا. شیر ہے نا ریلیکس. آج وہ ریلیکسنگ کو سنا ہے آپ نے, ایک صاحب ہے نا بندہ لیٹا ہوا تھا دریا کے کنارے, آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر. تو اب جو شیر ہے اس نے کیا کیا, وہ بہت آرام سے ریلیکس. تو اب وہ ایک آنکھ کھلی اس کی, یعنی کم وقت اتنی بھی نہیں توفیق مل رہی کہ وہ کہہ رہے کہ جو کام ایک آنکھ سے ہوتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کیوں. ایک آنکھ سے دیکھا کہ سچویشن ہے کیا, ایسے کھول کے نہ دیکھ رہے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, 4-10 بغیر قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور
मेरी वाइफ जो है वो है, तो बहरहाल शेरनी ना, वो शेरनी इग्नोर किया है। ये छोटे मोटे मसाइल हमारे लिए मसाइल नहीं है, ये छोटी मोटी ये हमारे जैसे जो क्या बात है, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ मुझसे सियासी बातें निकलना शुरू हो जाती हैं असल में मेरे, हमारे छोटी मोटी कोई मसला नहीं होता हम लोग क्या। अच्छा खैर, तो शेर ने जो है ना एक आंख खोल के देखा, एक आंख खोल के देखा कि हालात का जायजा लिया, ऐसे कर ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लड़ लेगी। तो लेकिन वो नहीं लड़ पा रही बेचारी, वो गरीब आते जा रहे हैं। हुआ क्या है, अचानक शेर ने छलांग मारी है और जाके वो जो लगड़ बगड़ था ना, उसको एक रख के चमाट लगाया और सारे चीखते हुए भागे। यानी शेर इस इस सिचुएशन को बहुत हल्का ले रहा है कि बिल्कुल एंड में जब देखूंगा कि शेरनी अब लड़ने के काबिल नहीं रही है, तो एंड में कोई ज्यादा ये नहीं कि बदमाशियां हो तेरी ऐसी की तैसी, ये छिछोरे लोगों का काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं तो बातें बहुत करते हैं, लड़ाई नहीं कर रहे होते, धमकियां दे रहे होते हैं, 1 घंटा धमकियां देने में, जैसे बिल्लियां लड़ती है ना, बिल्लियों को देखा लड़ते हुए, बिल्ले जब लड़ते हैं ना आपस में तो इतनी लंबी उनकी बहस होती है, आदमी कहता है यार लड़के थप्पड़ छप्पड़ मार के जान छुड़ाओ, क्या घंटा तुम्हें फुला के ना बस समझाते रहते हैं। और इधर एक वाक्य सुनाया करते थे कि जो हक पर होते हैं ना, ये मैं भूल ना जाऊं, ये शेर का वाक्य है, इसमें बहुत इबरत है, ये लतीफा बड़ा है, लतीफा नहीं है इसको कहीं आप ये ना समझे मैं कोई यहाँ आपको लताइफ सुनाने के लिए आया हूँ। तो जिसके अंदर ये फिर आखिर में सुनाऊंगा, फिर मेरा ध्यान मेरा रह जाएगा। ये शेर कुत्ते और बिल्ली का वाक्य है, बहुत दिलचस्प वाक्य है। तो शेर उठा और एक चमाट लगाया, चल बदतमीज यहां से, वो भाग गए। तो ये शेर की नेचर है, ये किसने बनाई है भाई? अल्लाह ने। अब आपने क्या किया, शेर इसी स्टाइल में रहना पसंद करता है, यही स्टाइल है शेर का। आपने क्या किया, आपको शेर पे तरस आया, आप शेर को उठा के ले आए अपने घर में, डबल बेड, कंबल, 75 फॉरेनहाइट आपने उस पर टेम्परेचर कर दिया, और फिर आपने कहा तू कितना थका हुआ है और कितनी मेहनत करके हिरन का शिकार करता है, तो हम तुझे क्या बना के देंगे, बिहारी कबाब बना के देंगे, कोफ्ते, चमड़ी कबाब, बिहारी कबाब, मुख्तलिफ चीज़ें आप उसको खिला रहे हो। फिर आपने उसका शेरनी से रिलेशन की भी ऐसी कि वो जो लड़ता था ना शेरनी के लिए, वो भी कब कोई आ ही नहीं रहा लड़ने को, लगड़ बगड़ नहीं आ रहा, कहाँ से लड़ेगा वो शेरनी की खातिर। तो होते होते क्या हुआ, आप मुझे एक बात बताओ, शेर खुदकुशी करके मरेगा कि नहीं मरेगा थोड़े दिनों में, है भाई? भाई अब कोई माहिर नफ्सियात तज्जिया करे यार, सारी चीजें तो चलो, कच्चा वो ये चमड़ी कबाब नहीं खाता, कच्चा गोश्त ही खिला दो आप उसको, लेकिन आपने उसको गद्दे और सोफे दे दिए, नतीजा क्या निकलेगा भाई? थोड़े दिनों में शेर बंदूक उठाएगा, या तो आपको गोली मार देगा, या अपने आप को गोली मर जाए, या शेर के शेर से ताल्लुकात हो जाएंगे, अल्लाह माफ करो। यानी कि जब शेर भी नहीं मिलेगी ना, तो वो भी कहेगा यार ये कोई लॉ पास होना चाहिए इस लाइफ। तो फिर लड़ेगा किसके लिए? मर्द औरत के लिए जो है ना जान देता है, उसको एक मर्दानगी का एहसास होता है, जमशेद के लिए थोड़ी देगा कोई जान। क्या ख्याल है भाई? कोई जमशेद भाई बैठे तो माजर। तो अब देखो क्या मसला है, शेर की जिंदगी में सब कुछ था, उसे कच्चा गोश्त भी मिल रहा था, उसे टेम्परेचर भी नॉर्मल जितना शेरों के लिए जरूरी है, लेकिन आपने उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी है, उसको क्या कहते हैं? नेचर, फितरत। जब फितरत उसकी जिंदगी से निकल गई, नेचर से दूर कर दिया, डिप्रेशन में जाना शुरू। खूब समझ लें, इंसान की जिंदगी के 2 रुख हैं। आप कहेंगे भाई हम तो नेचर से दूर नहीं है, क्या ख्याल है भाई, हम तो नेचर पे? ना ना, देखो इंसान और जानवरों में फर्क ये है कि इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जानवरों की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू होता है जिस्मानी, रूहानी पहलू जानवरों की जिंदगी में नहीं होता। कैसे, क्या मतलब इसका? मैं मिसालों से जरा बात को समझाता हूं। देखो इंसान जो है ना, ये मुहज़्ज़ब हैवान है, देसी उसके करीब खड़ा होता है वो कुत्ता लग रहा होता है।
इतने यानी खूबसूरत किस्म के मुहज़्ज़ब कुत्ते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम पहले भागते थे, कुत्ते पीछे पड़ जाते, ये सब कुछ होता था, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी था। अब ये सारे काम हमने छोड़ दिए, तो अब हमें मसनूई जॉगिंग करनी पड़ती है, जिम जाके वजन उठाने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो खूब अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई, काश ये बात हम सबके दिल में उतर जाए। काश, देखो सुकून की तलाश में मजहब से बगावत करोगे, खुदा की कसम सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा, खुशियां नहीं मिलेगी। खुशियों के असबाब इख्तियार करना आपके हाथ में है, दिल में खुशी पैदा करना आपके हाथ में नहीं है। खुशी पैदा करना, खुशी अल्लाह पैदा करता है। तो इंसान की जो रूहानी जिंदगी है ना, उसमें भी उसको नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। मादी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए डॉक्टर है, रूहानी जिंदगी में, अखलाकी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। क्यों? आप अपनी अकल से अपनी अखलाकियात को खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, खुद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा काम अखलाकी है और कौन सा काम गैर अखलाकी है। ये इंसानी अकल पे नहीं छोड़ा जा सकता। देखो एक मिसाल से समझाता हूं। अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़हीन बनाया, लेकिन मादी लिहाज से भी और रूहानी यानी अखलाकी लिहाज से भी इंसान को तरबियत की जरूरत है। देखो बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो डायरेक्ट बकरी के थनों की तरफ लपकता है। आप उसे चाय में बिस्किट डाल के पकड़ा दें, वो कभी भी बोलो ना नहीं खाएगा। आग का अंगारा उसके सामने रख दें, वो कभी भी नहीं खाएगा। गोश्त उसके सामने रख दें, वो कभी भी नहीं खाएगा। शेरनी का बच्चा जब पैदा होता है, खरबूजे ला के रख दो उसके सामने, आप उसको बताओ कि सब्जी खाने के इतने फायदे, वेजिटेरियन बनो, वो कभी भी नहीं बनेगा। आप यूट्यूब पे कितने क्लिप दिखा दो, वो नहीं बनेगा। बकरी को आप कीटो डाइट पे ले आओ, आजकल कीटो डाइट पे बहुत यूट्यूब पे क्लिप आ रहे हैं। यहाँ तो वो कीटो का हिसाब खत्म हो गया, सुना पाकिस्तान में आ रहा है। यहाँ पहले तजर्बा हो गया, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान चले जाते हैं, फिर हम लोग के यहाँ वो चीजें आती हैं। हमको डॉक्टरों ने कीटो डाइट बिल्कुल लोगों से रोटी चावल ही छुड़वाती है, अनाज गलत छुड़वा के डायरेक्ट गोश्त अंडे मंडे बस ये। तो हर चीज में मुबालगा हो रहा है। तो और जब तक गुलूफ ना हो तो अंडा बिकता भी नहीं है। जब तक जमीन और आसमान के वो तालाबे ना मिलाए जाए ना किसी चीज के फजाइल में, तो मंजन भी नहीं बिकता हमारे। अब एक साहब मुझे मिले कराची, कह रहे हैं मंजन के अल्फाज ही सुनने को नहीं मिल रहे। तो क्या है कि भाई आपने बकरी के बच्चे को कीटो डाइट पे ले आया, या भैंस को आपने कहा तुम्हारा वेट इतना है, मैं तुमसे चला जाता है, तुम्हें बैठा जाता है, तुम कीटो पे आ जाओ, उसको क्लिप दिखा के गोश्त पे आओ, इतना ये फैट हो रहा है। आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, उसने खाना क्या है? घास खानी। इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया, फिर हदा का मतलब उसे गाइड किया कि उसे करना क्या है। जानवरों को गाइडेंस अल्लाह ताला दे चुका है, समझते हो या नहीं समझते? इसके लिए अल्लाह ने वही का लफ्ज इस्तेमाल किया। इंसानों की गाइडेंस के लिए भी अल्लाह ने वही का लफ्ज इस्तेमाल किया, और जानवरों को की गाइडेंस के लिए भी अल्लाह ने, बोलो ना, वही का लफ्ज। देखो इंसानों की अभी जो है नमाज ब्रेक हुआ है, नमाज वगैरह पढ़ी है और बयान वगैरह भी वापस से शुरू हुआ। लेबल मैंने बताया ना, चर्च पे लेबल अच्छे लगाए जा रहे हैं, एंटी डिप्रेशन का लेबल लगाया जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग होगी, पहले आपस में मिलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, वो कायदे के मज़ार पे यही बोल रहा है आजकल। तो जो है फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर यूं होगा, फिर वगैरह वगैरह, फिर वो तरक्की करते 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 इतना आगे निकल गए कि बच्चे भी पैदा होना शुरू हो गए। अब बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे फिर अब्बा अम्मा की शादी में तंबू बम्बू लगा रहे होते हैं अब्बा अम्मा की। उसके बाद भी कम वक्त तलाक होती है, कुछ के नहीं भी होती, लेकिन अब 55 साल में शादी के बाद रह क्या गया? तलाक के लिए भी तो कुछ जज्बात चाहिए ना, वो भी खत्म हो गया, फिर भी हो रही है। तो भाई कोई फॉल्ट है। और हम अपने बाप दादा को देखते थे यार,
पूरी जिंदगियां कोई तलाक का लफ्ज ही कभी जबान पे नहीं आता था, कैसे रिश्ते निभाते थे। इसका मतलब भाई शायर ने कहा है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, असल में कुछ और है, नजर कुछ और आ रहा है। ये भी इस्लाम की खूबी है। इस्लाम के पहली दफा में एतराज करना बहुत आसान है, जब उसकी डेप्थ में जाओगे, जब भी आप इस्लाम का कोई हुक्म आएगा ना पूरे तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा इस्लाम से ज्यादा माज़अल्लाह खराब कोई मजहब है ही नहीं। तो सफाई को देख लो, फिर जल्दी से बात को समेटता हूं। फिर सफाई में खाने से शुरू किया, फिर उसके बाद सबसे पहले इस्लाम में जो सफाई का जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर दिया वो दांत है, क्योंकि हमारी खुराक कहां से जाती है? दांतों से। उस जमाने में जब कोई दांत साफ करने का तसव्वुर नहीं था, कोई डेंटिस्ट नहीं था। आपको पता है फिरौनियों की कोई बहुत बड़े डेंटिस्ट ने बताया, रिसर्च है कि, और ये मैंने बीबीसी की न्यूज में भी ये बात पढ़ी है, बीबीसी की न्यूज में जो उसका साइंसी पेज होता है ना, अक्सर मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें भी ये रिसर्च आई थी कि जो फिरौनियों की जो लाशें रखी हुई हैं उनके दांतों पे जो रिसर्च हुई है उससे पता चलता है कि कमबख्त दांत कभी भी साफ नहीं करते थे, था ही नहीं आवाज, खाया सो गए दांतों के। और ये जो रूट कैनाल है ना, ये फिरौनियों में है, जो निकले हैं ना उनके मुजस्मे, उनमें सोने की तारों से दांतों को फिक्स किया हुआ, जो डॉक्टर नहीं करते रूट कैनाल जड़ें अंदर ले जाते, ये पहले से ये बहुत, क्योंकि दांत खराब बहुत होते थे उन लोगों के, साफ करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये चीजें इंसान खुद नहीं सीखता जब तक कोई सिखाता नहीं है। डॉक्टर थोड़ी थे ये सब बातें बताने वाले। उधर आप देखें यतीम पैगंबर जो ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, इतनी मिसवाक भाई कौन है जो सफाई के बारे में आपको इतना अवेयर कर रहा है, इतना अवेयर कर रहा है आपको, कौन रहनुमाई कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है? सुबह उठ के सबसे पहला काम, यानी आप अंदाजा लगाओ मौत के वक्त दुनिया से जाते हुए जो नबी ने सबसे आखिरी काम किया वो दांतों की सफाई की है। नहीं आई मेरा इस्लाम शुरू भी कहां से हो रहा है? सफाई से। मुर्दे को जो सबसे आखिरी रस्म अदा की जाती है गुस्ल, नमाज से पहले क्या कराया जाता है? गुस्ल। तो शुरू भी सफाई से, एंड भी कहां हो रहा है? तो इस पे मैं सिर्फ इस्लाम के तहारत और सफाई के निजाम पे बोलना चाहूं, फजर हो सकती है, इतनी इसकी मिसालें हैं। एक एक ऑर्डर को आप इस्लाम के लेके कंपेयर करना शुरू करो दूसरे मजहबों से भी और दूसरे कवानीन से भी, क्योंकि क़यामत तक के लिए आया ना, हर चीज में गाइड किया है, इसमें गाइडेंस मिलेगी हमें हर चीज में। ये बड़ी जबरदस्त खानदानी बात है। अब मिसाल के तौर पर आप दूसरे मजहबों के पास जाओ ना, इसके बारे में क्या हिदायत, वो खामोश, इसके बारे में क्या हिदायत, वो खामोश। मिसाल के तौर पर हम सूदी बैंकिंग को नाजायज समझते हैं, तो इस्लाम ने उसके ऑल्टरनेट 5 उकूद दे दिए हमें, मुजारबत, मुशारकत, बै सलम, इजारा, मुराबहा, जो इस्लामिक बैंकिंग में चल रहे हैं ना, ये 5 ऑल्टरनेट हमें किसने दिए? बोलो, इस्लाम ने। हर चीज में ऑल्टरनेट, बेहतरीन खानदानी किस्म का ऑल्टरनेट दिया हुआ इस्लाम ने हर चीज में। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं ना, गैर मुस्लिम स्टेट में, यहाँ अमेरिका है, हम लंदन में रहते हैं, हम जापान में रहते हैं, भाई इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, यहाँ गवर्नमेंट के साथ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, काफिर हुकूमत है क्या? पूरी सूरह यूसुफ हमें इस बारे में गाइड करती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्लिम स्टेट में थे या गैर मुस्लिम स्टेट में? गैर मुस्लिम स्टेट में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बिहेवियर उस स्टेट के साथ कैसा था? अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफें की हैं। 2 आयतें में यहां जितने मेरे बयानात हो रहे हैं ना, 2 आयतें मैं पेश कर रहा हूं उनके सामने, ताकि उनको रट्टा लगा के ये आयतें याद हो जाएं। कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, बाज लोग कहते हैं आप बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हो। भाई वो इतनी खानदानी चीज है, जब कोई खानदानी चीज होती है उसको रट्टा लगा के याद किया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? 2 आयतें याद कर लें। नंबर 1, इन्नहु रब्बी अहसना मथवाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज़े मिस्र की बीवी ने कोशिश की उनको वरगलाने की, बदकारी की कोशिश की, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तेरा जो शौहर है ना, जो यहाँ का बादशाह है या अजीज है, कोई भी ओहदा था उसके पास, उसने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया इस मुल्क में। मैं तो कुएं में था, बाजारों में फरोख्त हो रहा था, उसने मुझे यहाँ बेहतरीन ठिकाना दिया।
تو میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کیا مطلب، اگر وہ برا سلوک کرتا تو خیانت جائز ہوتی ہے؟ پھر بھی جائز، زنا تو حرام ہے۔ تو یہاں پیغمبر کو اللہ کا حوالہ دینا چاہیے تھا نا بھائی۔ بات یہ ہے کہ وہ تھی غیر مسلم، اس کو اللہ کے حوالے سمجھ میں نہیں آتے۔ پیغمبر تو زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، چاہے اس عورت کا شوہر ظالم ہو یا عادل ہو، وہ عورت شوہر والی ہو یا کنواری ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے مذہب میں تمہارے لا کے مطابق بھی مرد کی جب کوئی بیوی ہوتی ہے اور مرد محسن بھی ہو تو اسی گھر میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی جاتی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یہ کیوں کہا یوسف علیہ السلام نے؟ بھائی ہمیں ٹھکانہ بہت اچھا دیا ہے، بادشاہ کے محل میں رہا ہوں، میں عزت کے ساتھ رہا ہوں، میرے ساتھ یہاں برا سلوک نہیں۔ آپ بتاؤ اکثر بیچارے غریب ملکوں سے آئے ہوئے ہو، یہاں پہ کوئی ڈنکی لگا کے آیا ہے، کوئی گدھے پہ بیٹھ کے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے خود میں آپ کے راز کی فاش کرنا چاہتا، اچھا گمان ہے سب لیگلی آئے ہوں گے انشاءاللہ، صلو علی النبی، ٹھیک ہے؟ تو کیوں آئے ہو، کس سلسلے میں آئے ہو؟ برا سلوک ہو رہا تھا اس لیے آئے ہو؟ تو اچھا سو آپ کو یہاں جاب مل گئی، سانس لے رہے ہو تازہ ہوا میں یہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا پگڑی میلی نہیں ہوئی میری، یہی پگڑی پہن کے گھوم رہا ہوں، گرد نہیں ہے، ڈسٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ پر کوئی خام خواہ کی پابندیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے لیکن مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، شراب یہاں لیگل ہے، مگر گن پوائنٹ پہ آپ کو پلائی۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا ناجائز چیز میں گورنمنٹ کو فالو مت کرو، تو آپ سے کوئی ناجائز کام کروایا نہیں جا رہا ہے جہاں تک میری نالج ہے۔ آپ کو نہیں کہا جا رہا آپ نماز چھوڑو، آپ کو نہیں کہا جا رہا آپ روزہ چھوڑو، آپ کو، بلکہ زیادہ تر قوانین تو وہ ہیں جو خود اسلام کے ہیں، یہی ہے نا، صاف ستھرا رکھو بھائی، درخت لگاؤ، تو درخت لگانے کی فضیلت تو بخاری میں پہلے نبی 1400 سال پہلے دے چکے ہیں، اور ایسی فضیلت بیان کی ہے نبی نے وہ تو گورے بھی نہیں بتا سکتے۔ نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث، جس نے درخت لگایا نا اور مر گیا، گورا تو کہے گا درخت لگایا اور زندہ رہے، آکسیجن ملتی رہے گی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے درخت کا، اصل فائدہ تو موت کے بعد شروع ہوگا۔ فرمایا جتنے مخلوق اس درخت سے فائدہ اٹھائے گی، یہ درخت تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اعمال کے ترازو میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اللہ اجر کو ضائع۔ جب امریکہ درخت لگانے پر آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کم از کم تھینک یو کا خطاب تو ملتا ہے آپ کو، تو اللہ درخت لگانے پر آپ کو کیسے بھول جائے گا؟ وہ اپنے حساب سے اجر دے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں چوری حرام ہے، امریکہ میں بھی کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یار اسلام تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ چوری کرو، امریکہ پابندی لگا رہے ہیں، اسلام کی سنیں امریکہ کی سنیں، تو بہت سی چیزیں تو پہلے سے اسلام کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں کچھ چیزیں یہاں لیگل ہیں، اسلام میں انلیگل ہیں، لیکن یہاں پر گورنمنٹ آپ کو گن پوائنٹ پہ وہ انلیگل کام جو اسلام کی اکارڈنگ ٹو اسلام انلیگل ہے وہ کروا نہیں رہی ہے۔ تو ہمارے پاس بہترین مثال یوسف علیہ السلام کی ہے، ایک تو یہ کہ انہو ربی احسن مثوایا، انہوں نے اچھا ٹھکانہ دیا، اب ان کے ساتھ ہم خیانت نہیں کریں گے۔ تو آپ اس کنٹری میں رہ کر یہاں گورنمنٹ کے ساتھ خیانت مت کرو۔ کوئی اگر آپ سمجھتے حکومت غلط کر رہی ہے، کہیں ظلم کر رہی ہے، تو احتجاج آپ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی استطاعت ہو اس استطاعت کے مقدر تم برائی سے روک سکتے ہو تو وہ آپ کرو، یہاں کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن ایسا کام مت کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ مذہبی اسکالر کچھ اشتعال انگیزی باتیں کرتے ہیں، کچھ اشتعال انگیزی یہاں آ کے تو نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف لیبل ہیں، وہ میں لیبل بتاؤں گا تو پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کو مشتعل کریں گے وہ، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، رہی صحیح آپ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کام یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک کافر اسٹیٹ تھی، کافر ریاست تھی، قحط پڑنے والا تھا، ان کو خواب کی صحیح تعبیر بتائی اور بتایا کہ قحط پڑے گا، لوگ بھوکے مریں گے، بھوک سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں خزانوں کا علم رکھتا ہوں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا، خیانت بھی نہیں کروں گا، اور یہ علم جانتا بھی ہوں،
कैलकुलेशन, जो अकाउंटिंग का इल्म है, इकोनॉमिक्स का इल्म है, मैं जानता हूं कि कितना स्टोर करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके रेट कितने रखने हैं। इससे क्या होगा, दुनिया भी कहत से हलाक होने से बच जाएगी और मिस्र भी कहत से हलाक होने से बच जाएगा, और ये कहत मिस्र को इकोनॉमिकली और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। इसके लिए मेरी खिदमत मैं हाजिर हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर खजाना बनाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र को कहत से हलाक होने से भी बचाया, दुनिया को बचाया, और मिस्र इकोनॉमिकली कमजोर होने के बजाय स्ट्रांग, गैर मुस्लिम स्टेट थी या नहीं थी ये? तो इस्लाम भाई खैर ख्वाही का मदहब है, चलता फिरता खैर ख्वाही। देखो इस्लाम में उन गैर मुस्लिमों के साथ लड़ने का हुक्म है, तुमसे लड़ रहे हैं मैदान जंग में। मैदान जंग के हकाम अलग हैं, और जो मैदान जंग ना हो, ये मैदान जंग नहीं है, यहां के हकाम क्या हैं, अलग हैं। तो ऐसा ना हो कि जो जंग के हकाम, जब वॉर होती है दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर पूरी दुनिया के कवानीन चेंज हो जाते हैं। दुनिया की किसी किताब में लिखे, जब आपकी किसी मुल्क से वॉर हो रही हो, तो लड़ रहे हो, तो फूल लेकर जाए आप। वॉर के हकाम को आयतें यहां ना चस्पा करो मेरे भाई, यहां वो आयतें हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, ये वाली आयतें यहां फिट होंगी। बाकी अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस गलत में कोई किसी का साथ ना दे, उस गलत के खिलाफ आवाज भी उठाई जाए। हम ये नहीं कह रहे कि गलत को आप सही कहना शुरू कर दें, मक्खन लगाने की इजाजत नहीं है, वो आपका राइट है कि जो गलत है उसको आप क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, और इन मुल्कों में तो आपको ये राइट भी दिया है। लेकिन कोई ऐसा काम जज्बात में मत करें जिससे आप पे पाबंदियां लगना शुरू। आपने यहां के जो गैर मुस्लिम हैं उनसे अच्छा यहां शहरी बन के दिखाना है आपने। कानून को मत तोड़ें, टैक्स टाइम पे दे दिया करें। लोग कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, ये क्यों है, ये फलाना है। भाई आपको टैक्स इसलिए देने का ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको वो सारे हुकूक मिलते हैं जो एक टैक्स पेयर को मिलते हैं, तो आप अपना हक लेते हुए पूरा हक लेते हो, जब टैक्स देने की बारी आती है डंडी मारते हो। तो वही बात है, यहाँ ये इल्लीगल है, अल्लाह की नजर में ये हराम है, सिर्फ इल्लीगल नहीं है। कुरान क्या कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, यहाँ थोड़ा सा जुर्माना लग जाएगा आपके ऊपर, लेकिन अल्लाह कहता है उन लोगों के लिए जहन्नम की आग है जो हक लेने की बारी आती है तो पूरा लेते हैं, हक देने की बारी आती है तो क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। इसमें अल्लाह ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क बोलो नहीं रखा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात में। और आखिरी बात कुछ खवातीन की खिदमत में, देखो फैमिली सिस्टम को जोड़ना औरत के हाथ में है। किसके हाथ में है? औरत। मर्द बहुत ही माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ अक्सर ठरकी ही होते हैं, बहुत माजरत के साथ। उन मर्दों की बात कर रहा हूं जो आपके अलावा या बयान सुन रहे हैं, उनके अलावा। औरत जब पर्दे से आजाद होती है ना, बहुत कम मर्द हैं जो अपने आप को महफूज रखें। घरों में तलाकें हो रही हैं इस बेस पे। खवातीन के फोन आते हैं, वो मेरे मियां कि उस लड़की से चक्कर चल रहा है, उस लड़की से। मैं कहता हूँ वो लड़की पर्दा कर लेती तो चक्कर नहीं चलता। गलत कर रहा है मर्द, लेकिन उसको खराब करने वाली कौन है? तो इस्लाम ने उस औरत का ख्याल किया जो आपकी बीवी बन के आपके घर में आई है, तभी बाकी औरतों को हुक्म दिया है हिजाब में, ताकि इसका घर बचा रहे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे ना कि ले दे के जब पर्दे का माहौल होगा, मर्द घूमेगा तो कोई देखने को मिलेगी नहीं, ले दे के आएगा कहाँ, बेगम के पास, और कहेगा मैं इस सिलसिले में हाजिर हूँ, ठीक है आप मेरी बेगम है, और कोई मुझे बाहर लिफ्ट नहीं करा। तो खवातीन हिजाब में पर्दा करें, इसमें आपकी इज्जत है, इसमें आपके हुकूक है। और अपने मियाँ को क्या समझें, बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मियाँ, घर का सरबराह। और मर्द को चाहिए कि वो ज़ौजा के और हुकूक में सबसे अहम हुकूक जो यहाँ जो रिपोर्टें आ रही है, मर्द हजरात घर में टाइम नहीं देते, बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते। तो रंग रलियाँ, एक लतीफ़ा सुना के बयान ख़त्म करता हूँ, फिर बात समझ में आ जाएगी। देखो आप अभी बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे ना, तो आप एफोर्ड कर लोगे, लेकिन जब इन्होंने आपको बुढ़ापे में नजरअंदाज किया तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। सही से मोहब्बत पैदा कर लो, टाइम दे। कोई भैंस वाला लतीफ़ा कल भी बयान में सुनाया था कि वो एक आदमी को की भैंस को कब्ज था, हकीम साहब के पास गया, हकीम साहब ने इतने सारे जमाल मोटा दे दिया ना उसको कि पाइप में रखना, भैंस के मुंह में डालना, यहाँ से जोर से फूंक मारना, जमाल मोटा उसके मुंह में जाएगा और मोशन हो जाएगा।
तो इसने जाके रखा और क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, पता नहीं काम चला गया, आ ही गया। तो हकीम साहब गए, मर रहा है बस, वो आखिरी सांसें चल रही हैं। हकीम साहब ने कहा भाई तूने भैंस के मुंह में पाइप रखा था, हाँ रखा था, जवान मोटर डाला था, हाँ डाला था, कहते फूंक मारी थी, क्या उसने पहले मार दी। तो भैंस से जब फूंक मारेगी तो ये अफोर्ड कर पाया, तो आप इग्नोर करो वो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने बुढ़ापे में आपको इग्नोर किया तो आप अफोर्ड। इसलिए अपने बीवी बच्चों को घर में इंसान के बच्चे बन के ना बैठा करो, उनके साथ टाइम दिया करो। तो जो है वो क्या हुआ, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं करना, हाँ बयान ही ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे तंग ना किया करें बयान के बीच में, ठीक है ना, मुझे टाइम बता दिया करें कि इससे पहले ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे फिर बीच में कोई टोकता मुझे बहुत तकलीफ होती है इससे। 2-3 चीज़ों का बहुत मेरे साथ ख्याल करें, मेरा मीटर बहुत घूमता है उस पर। या तो मुझे टाइम बताया करें भाई 10 बज के इतने मिनट पे आपने बयान खत्म कर देना है, क्योंकि उसके दौरान जो पकड़ी होती है ना, इससे मुझे बहुत टेंशन भी होती है। बिल्कुल रिलैक्स होके बता दिया भाई 10 बज के 20 मिनट में मुझसे बयान खत्म करना है, फिर मैं खुद ही उसका ख्याल करूंगा। जब मुझे टाइम दिया कि भाई आप करें तो फिर बीच में कोई टोकेगा तो आइंदा ख्याल करना इसका, ठीक है ना। एक का दूसरी बात ये, मुझसे पानी का ना पूछा करें बयान के दौरान, और खाने के दौरान ये खा लो वो खा लो। कल मैं गया हूँ कहीं खाने में, वो थका हुआ सफर में नींदें तो पूरी होती नहीं है, अब बैठे हुए हैं, अब खाना लगा दिया, भूख लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं भाई आप सर ये निहारी टेस्ट नहीं भाई जरा निहारी, वो सर ये कस्टर्ड भाई तमीज से खाने दो यार बैठ के, खुदा के ये क्या तकल्लुफ है यार, यहाँ के भी देसीपन आपने नहीं जाएगा, अंग्रेजों से ही तमीज सीख लो, गोरे करते हैं ऐसा। भाई तुम्हारे सामने रखा हुआ है, निहारी भी रखी हुई है, कोरमा भी रखा हुआ है, बिरयानी भी रखी है, पानी भी रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, पेप्सी भी रखी हुई है, स्प्राइट भी रखी हुई है, और मक्का कोला भी रखी हुई है, और इस्लामी कोला भी रखी हुई है, यहूदी कोला भी, सब किस्म के कोलेज रखे हुए हैं। बंदे को आराम से क्यों बिला वजह, ये खिदमत नहीं है, ये तकल्लुफात हैं, तकल्लुफात पसंदीदा नहीं। जितना खाना होगा खा लेंगे बैठ के, इतना जिद किया ना, मुझे बिल्कुल गुस्सा आ गया। मैंने कहा आराम से बैठे रहने दो यार, क्यों हर थोड़ी देर में ये कह रहा है पानी पिएंगे आप, तो ये गलत होता है। तो बयान के दौरान भी ना एकदम उधर पानी पिएंगे भाई रखा हुआ है, जब मुझे प्यास लगेगी मैं पी लूंगा, सही है, इसका ख्याल किया करो। हम भी इंसान है, मीटर हमारा भी घूमता है कभी कभार घूमता है, लेकिन बहुत खतरनाक किस्म का घूमता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है मेरे भाई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 4 काम जल्दी बता दूं, तबलीग में वक्त लगा दिया करो, मस्जिदों के करीब घर ले लिया करो, और जो मुसलमानों की गैदरिंग होती है रमजान वगैरह में उसमें जुड़ा करो, और चौथा काम घरों में टाइम दे दिया करो। बस इवेंट हो गया, मैं वापस गाड़ी में आ गया हूँ, और बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने अच्छे से बताया, सारी चीज़ें बताई, यहाँ के हिसाब से ही बताई कि सर्कुलर स्टेट है, किस तरह से आप करें। और गैर मुल्की स्टेट में भी जो यहाँ पे जो है इस्लामिक स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है सही से रहें, यहाँ पर सही से उनके काम करें उस तरीके से, और एग्जाम्पल्स दिए जैसे आपने अभी सुनी सारी। तो बस मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देगा।